क्लास के बीच में कोई अनम्यूट नहीं करेगा, बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होती है क्लास में। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, यू हैव टू आंसर इन द चैट बॉक्स। आई विल चेक माई सेल्फ एंड आई विल रिवर्ट व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, Okay. ma'am. Chalo, we are starting the class. In the last class, day before yesterday, we have done HCF by prime factorization method. So today we will do HCF by division method. Okay, I am taking one. Ma'am, can you explain it again because I joined just now? बेटा काइंडली डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आप सिर्फ, मैंने अभी कुछ समझाया नहीं, आप बैठिए और यू हैव द रिकॉर्डिंग्स, सो डोंट डिस्टर्ब द क्लास अगेन एंड अगेन। जब आप रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखेंगे, अगर कुछ मिस भी होगा तो उसमें कवर हो जाएगा। टुडे वी विल डू HCF बाय सक्सेसिव डिवीजन मेथड। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, काइंडली सी ऑन द बोर्ड। फोकस करेंगे तो सब समझ में आएगा अच्छे से। HCF by division method today we will learn. I am taking one example. Suppose we have 36 and 48 and we have to find its HCF, highest common factor, by using the division method. So what we will do, we will divide the greatest number by the smallest number. 48 divided by 36, it will 48 will not go in the table of 36, so we will use 36 into 1, that gives us 36. Now we will subtract 36 from 48. 8 minus 6 gives us 2. 4 minus 3 gives us 1. Now see, this is the important step. Now what we have to do with this remainder? With this remainder, we will divide this number. It is 36. 12 into 3 gives us 36. So now when we will subtract, we will get the remainder 0. It means our HCF is done. So here our HCF is 12. If this concept is clear to you, kindly give me thumbs up in the chat box. Give me thumbs up in the so and said इसको clear है. No, ma'am. Give me thumbs. Beta, you have to just write in the chat box. I will explain it again, but kindly don't unmute yourself. Anshra, clear है? Yes, ma'am. I am telling one more example. Kindly focus on the board. Now we have 25 and 55. We have to find out the HCF and we have to use the division technique. तो हम जो बड़ा नंबर गिवन है उसको करेंगे डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट वन. 55 विल बी डिवाइडेड बाय 25. 25 के टेबल में 55 नहीं आता है, तो हम लेंगे उससे छोटा नंबर. 25 into 2 gives us 50. So I am using that. 25 into 2 gives us 50. Now what is the rule in division? We subtract. Now 5 minus 0 gives us 5 and 5 minus 5 gives us 0. So we are left with the remainder 5. Now what we will do? Now with this remainder we will divide this number 25 like this here. 5 into 5 gives us 25. Now we are left with remainder 0. When we got the remainder 0, our processing is completed and this is our HCF, जिससे हमें जिस नंबर से डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर 0 मिलता है वो होता है HCF. तो यहाँ पे जो HCF है वो है 5. Now
गिव मी थम्स अप इफ यू आर क्लियर विद दिस. चैट बॉक्स में थम्स अप दीजिए. मैम. सायशा, अंशरा, करवनवीर, संजना. मैम. हाँ जी. Can हाँ you जी, show? हम्म. Can you show us the one more this HCF? ओके बेटे म्यूट करो, उसको म्यूट करो. आई एम टेलिंग. आई एम गिविंग वन मोर एग्जाम्पल. अब आप इसको ध्यान से देखना. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर है मेरा कि आप जो मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ उसको एटलीस्ट 2-3 टाइम्स देखा करो. रिकॉर्डिंग का बेनिफिट तभी मिलेगा आपको, नहीं तो रिकॉर्डिंग भेजने का कोई बेनिफिट ही नहीं है. अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको रेगुलर डाउट्स ही रह जाएंगे. जब आपकी क्लास ओवर होती है उसके बाद नेक्स्ट डे आप रिकॉर्डिंग देख के अपना होमवर्क जब करेंगे तो आपका होमवर्क भी सही से होगा और आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे. क्योंकि बेटा मैथ्स इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस. ओके, आई एम टेलिंग वन मोर एग्जांपल. नाउ आई विल टेक 3 नंबर्स. हम नंबर ले लेते हैं 6, then 32 and then 54. ठीक है जी. वी हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ ऑल 3 नंबर्स. तो सबसे पहले हम दो छोटे नंबर्स को लेंगे. 32 को हम डिवाइड करेंगे 6 से. 32 doesn't comes in the table of 6, so we will use 30. 6 into 5 gives us 30. डिवीजन में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 minus 0 gives us 2 and 3 minus 3 gives us 0. Now what we have to do with this remainder, हमें इस रिमाइंडर से ये जो नंबर है जहां हमने स्टार्ट किया था डिवाइड करना, हम इसे डिवाइड करेंगे. 6 will be divided by 2. 2 into 3 is 6. सो यहाँ पे हमें मिला रिमाइंडर 0. तो मतलब यहाँ जो हमारा एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज 2. अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बिकॉज वी हैव 3 डिजिट्स. अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है जिससे हमें रिमाइंडर मिला 0, हम उस 2 से थर्ड ग्रेटेस्ट जो नंबर बचा है उसको हम करेंगे डिवाइड. आई एम डिवाइडिंग हियर 2 डिवाइडेड बाय 54. वैसे आपको अपनी नोटबुक में इसके नीचे करना है ये प्रोसेस. आफ्टर दिस यू हैव टू स्टार्ट हियर. 2 2s are 2 into 2 gives us 4. 5 minus 4 gives us 1. Now we will take this 4 here with 1. It becomes 14. And 2 into 7 gives us 14. So we got the remainder 0 here. So the HCF of 6, 32 and 54 is 2. I hope now it is clear to you. Kindly comment in chat box. Chat box में comment करिए. सोहन, what you have doubt? पूछो बेटा डाउट क्या है. Only सोहन will unmute. सारे unmute नहीं करेंगे. सोहन पूछिए. यस मैम. मैम हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक 0 ना आ जाए. हाँ जी, नहीं तब तो तक प्राइम डिवाइड नंबर ना आ जाए. नहीं नहीं, हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिले. ओके मैम. संजना, आपको क्या डाउट है? Yes. So if like if we have to do 6 minus 6 equals 0, we have to take the other digit which was before the 6. So like 2, we divided by that number 54, like Yes. that. If हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 2. Now what we have to do with this remainder, we have to divide it with the quotient जहां से हमने स्टार्ट किया था 6. अभी मैं थोड़ा एक और थोड़ा बड़ा नंबर लेके आपको बताती तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. म्यूट कर लो.
Okay, miss. मैं पीडीएफ का फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग, नहीं ये भी बड़ा नहीं होगा, चलो मैं खुद से कराती हूँ. नाउ वी हैव 64, 48 and 108. We have these three numbers and we have to find out the HCF. ऐसा आपका क्वेश्चन था, दो नंबर का कैसे होगा, जो जहां खत्म होगा टू नंबर का आई विल टेल. नाउ आई हैव सेड यू कि हमें छोटे दो नंबर लेने हैं, तो हम ले रहे हैं 48 एंड 64. हम 64 को डिवाइड करेंगे 48. 48 into 1 gives us 48 and 48 into 2 gives us 96. So we will use here 48 into 1. 48 into 1 gives us 48. Now we have to subtract as it is the rule of division. 14 minus 8 gives us 6 and 5 minus 4 gives us 1. अब हमारे पास ये 16 आ गया रिमाइंडर. अब हम इस 16 से 48 को करेंगे डिवाइड. 16 multiplied by 3 gives us 40. अब आयशा अगर हमारे पास यहाँ पे ये टू नंबर्स ही होते तो 16 is our SCF because 16 से जब हमने 48 को डिवाइड किया we got remainder 0. लेकिन हमारे पास तो 3 नंबर्स हैं, तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा. इस 16 से जहां से हमें रिमाइंडर मिला है 0, we will continue with this number 108. Now we will divide 108 by 16 and 16 8 6 8. 108 आता है 16 के टेबल में, 16 8 1 8 and 4 नहीं, तो we will use 16 6 16 into 6 gives us 96. हम यहाँ 16 multiplied by 6 यूज करेंगे. Now 8 minus 6 gives us 2, 10 minus 9 gives us 1. Now we are left with remainder 12. अब हम क्या करेंगे, इस 12 से इस 16 को करेंगे हम डिवाइड. 12 into 1 gives us 12. Now again we will subtract. 6 minus 2 gives us 4. 1 minus 1 gives us 0. तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 4 को अब 4 से हम किसे डिवाइड करेंगे, इस 12. 4 into 3 gives us 12. We got remainder 0. तो हमारा इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो है 4. Now comment in the chat box if it is clear to you or not. Kindly unmute ना करें, it's my humble request and it's my order also. Unmute करने से disturbance create होती है क्लास में. ठीक है जी, अब पीडीएफ का पेज नंबर 6 ओपन कीजिए जल्दी से. मैं इसको रब नहीं कर रही हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप एक बार देख सकेंगे प्रोसेस. पीडीएफ पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी. श्रेयांशी पहले बेटा एक बार कीजिए, देन आई विल टेक द राइट. फर्स्ट राइट पीडीएफ का पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी. आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. या अभी मैं आपको रुकिए, मैं भी आपको पहले थोड़े स्मॉलर नंबर्स के साथ कराती हूँ. आई एम राइटिंग द नंबर्स हियर. देखो (24, 12, 144). 24, 12 and 144 is your question. Ma'am, can I speak? हाँ जी बोलिए ज़ारा.
Ma'am, we need to first solve this sum or it's just an example? नहीं, आपको सॉल्व करना है बेटा. ये एग्जाम्पल ऑलरेडी आई हैव गिवन 3 4. यू हैव टू सॉल्व इट. जो भी अनम्यूट है म्यूट करके सॉल्व कीजिए और आपने आंसर जो है वो चैट बॉक्स में लिखना है. आई विल चेक माई सेल्फ आइदर द आंसर इज राइट और रॉन्ग. जसपाल जी, जो भी बच्चे वो है अनम्यूट है, काइंडली म्यूट देम. Ma'am, I didn't get this question. But you have to find out the HCF of 24, 12 and 144. Now, what is the rule? We have to take two smallest numbers. So, Okay. take 24 and 12. Okay, ma'am. हाँ जी. जीविका बैठो मत करो. You have to try. कृतार्थ कैमरा ऑन कर लो अगर नेटवर्क का इशू नहीं है तो. कीरत, इनाया, विश्वक, दक्ष, काइंडली डोंट ऑफ योर कैमरास. मैंने म्यूट रहने के लिए बोला है, कैमरा मत ऑफ करो. दिविशा हैज गॉट द आंसर. गुड. दिविशा, आप बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करो इतने. सोहन, इट इज रॉन्ग, चेक करो. हाँ ठीक है. ठीक है जी, आप पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट करिए ट्राई. डोंट वेस्ट टाइम. मीनवाइल अदर्स आर डूइंग. डू द बी पार्ट हियर. Ma'am, 1 minute, can I speak? हाँ जी, बोलो जी. Yes, ma'am. Ma'am, आप क्वेश्चन कौन से पेज पे वो बता दोगे एक बार? अच्छा जी, मैंने बोला है पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट. निष्का, योर आंसर Okay, इज ma'am. राइट. Who has given? Jigar, your answer is wrong, beta. Try once more. Sanjana, yes, 12 is the answer. Excuse me, ma'am, can I speak? Kindly first tell your name. Inaya, ठीक है आपका. श्रेयांशी, आपका भी ठीक है. Ma'am, my name हाँ is Vishwak, ma'am. हाँ जी, I विश्वक बोलो don't बेटा. have the textbook, ma'am. नहीं, मैंने बेटा पीडीएफ शेयर करी है. Okay, ma'am. हाँ जी, पीडीएफ में देखो बेटा. आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ. मैम, यस. मैम मैं डाउट पूछ सकती हूँ? हाँ जी बेटा, व्हाट्स योर नेम? श्रेयांशी मैम. हाँ जी, बोलो बेटा. मैम, हमारे टीचर्स ने बोला था जो डिवीजन हम कर रहे हैं वो सेपरेटली करना पड़ेगा. सेपरेटली करना पड़ेगा बेटा. हाउ? आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एग्जैक्टली. मैम, हमारे टीचर ने बोला कि ये जो 3 नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं ओके. लाइक एक डिवीजन एक कॉलम में करना है, लाइक सेपरेटली. ये डिवीजन एक कॉलम में करना है, फिर दूसरा अलग से करना है. हाँ. लाइक दिस. यस. कोई बात नहीं बेटा, वैसे मेथड यही है. इफ योर टीचर्स हैड सेड लाइक दिस देन यू कैन डू, नो प्रॉब्लम. ओके मैम. या जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए. आई हैव टू मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जीविका, योर आंसर इज राइट. आयान, योर आंसर इज राइट. त्रिशा, आपका भी ठीक है. सरवी, मैम, आप योर इज आल्सो राइट. क्वेश्चन की? यस बेटा, व्हाट यू आर सेइंग? मैम, आप हेडिंग बोल सकते हो क्वेश्चन की? या आई कैन. 144, 180 and 252. 144, 180 and 252.
Ma'am, can I speak? Beta, what you want to say? Ma'am, I want to say that I have to do the D part of question 6, or we have to do. Beta, I have written the question on board. Yes, ma'am. I am waiting for your answers in the comment box. कृतार्थ, हाँ जी 12। सोहन, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे हो? अभी का दिया आपने। आई एम चेकिंग द चैट बॉक्स, नो नीड टू अनम्यूट। सोहन, the answer of last question is 12, 24, 12 and 144. Now tell me the answer of this question: 144, 180 and 252. Jigar, question karo beta, don't see here and there. Focus on work. Waiting for your answers. Comment your answer fast. No one has given the answer. Are you unable to do or doing? Just comment me in the chat box. Vishwak, better don't talk. Do the question. Ma'am, I'm not talking, ma'am. I'm doing. Okay, karo beta. Trisha has said unable to do. Sohan, your answer is right, beta. Trisha, try karo. Trisha, you are in which class? Saisha. Inaya 36. Inaya is right. Saisha, what is the problem, beta, in this question? Only Saisha will unmute first. साइशा, क्या दिक्कत है बेटा इस क्वेश्चन में? Yes, ma'am. हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाउ वी हैव टू डू दिस? Yes, ma'am, but I'm little bit confused because it is different for me. Means I'm confused little bit in this. आपके डिवीजन मेथड नहीं है? आपके स्कूल में नहीं कराते डिवीजन मेथड? कराई है पर इतने लॉन्ग इतने में नहीं किया है ना, इसलिए मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है. अच्छा, यू हैव डन विद द स्मॉल नंबर्स? Yes, ma'am. ओके, आई एम गिविंग वन क्वेश्चन। जिनको थोड़ा बड़े नंबर से चैलेंज है, पहले वो करेंगे, उसके बाद दे विल ट्राई दिस। ओके Okay, ma'am. कॉन्सेप्ट इज सेम बेटा। नंबर से वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी हम थोड़े छोटे नंबर्स ले लेते हैं पहले। म्यूट योरसेल्फ, आई एम गिविंग सम स्मॉल नंबर्स। First do these two questions. पहले ये करते हैं, उसके बाद बड़े नंबर्स ट्राई करेंगे। (42) and (84). Waiting for your answers. 36 Nishka, it is right beta.
ठीक है आपका। डोंट अनम्यूट बेटा। जितना साइलेंस होगा ना उतना अच्छे से हम कर पाएंगे काम। Yeah, Shreyanshi, answer is right. 36. Now move to these 3 questions which I have written on the board. Vishwa, Hanji Vishwa, very good, it is correct. Sanjana, your answer, I have not seen your answer. Wait, I am checking in the chat. Divisha, Vishwa, Daksh. Daksh 45 is not the answer, beta. Sanjana, your is right, beta. Divisha, your answer is right. Good. विश्व, हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपका सेकेंड आंसर भी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इस तरीके से हम काम करेंगे ना चैट में तो हमारे क्वेश्चन ज्यादा होंगे रोज क्लास में। अंशरा, योर आंसर इज राइट, वेरी गुड। डू द नेक्स्ट वन। दक्ष 42, वेरी गुड। सोहन, इट इज राइट, गुड गुड, वेरी गुड। साइशा 42, वेरी गुड, राइट। Ayan 6, answer B 7. Sargun 42, right. Ayan, kindly type the answer again. Sanjana 42, right. Trisha, you did not understand the question. Question is 42 and 84 and you have to find out its HCF. Sargi 42, right. सिक्स बी अभी मैंने मना किया बेटा करने के लिए। अभी मैंने बोला है कि बोर्ड वाले क्वेश्चंस करो जो इजी हैं, उसके बाद करना। जब इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से कर लोगे। विश्वक थर्ड, वेरी गुड विश्वक, इट इज राइट। नो विश्वक, इट इज रॉन्ग। थर्ड का आंसर भी आपने रॉन्ग है बेटा, ट्राई अगेन। हाँ सोहन, योर आंसर इज राइट बेटा, गुड। निष्का, राइट। इनाया करो बेटा। श्रेयांशी, योर आंसर इज रॉन्ग, इट इज नॉट 22 बेटा, चेक इट वंस अगेन। जरा ट्राई करो उसको दोबारा। इट इज द सेम क्वेश्चन जैसे हम पहले कर रहे हैं। फर्स्ट डिवाइड 63 by 42, सी व्हाट यू गेट। सेकंड आंसर इज 5। जिगर, नो, नॉट 5। yes 21, it is right Shreyanshi. Right Sargun.
Aryan, have you done? Aryan Dave. Ma'am, I'm trying to doing. Okay. Saisha. हाँ जी ठीक है 21 is right. Yes. Nazia, it is 21. Third 6. Yes, yes. आप कमेंट करते रहिए मैं एक बारी में आंसर्स बताती हूँ. You have 2 more minutes to do these 3 questions. Do fast. Those who have done, kindly move to the question number 6 of PDF. Excuse me, ma'am. Camera बंद. I have commented the answers in the chat box. आप वहां से चेक कर सकते हैं. Excuse me, ma'am. Ma'am, Yes. ma'am, I wrote the 3 sums, ma'am. What should What you are saying, beta? Ma'am, I wrote the 3 sums, ma'am. Okay, you have done all 3. Yes, ma'am. Now do this question 144, 180 and 252. Now those who have done with these 3 questions, kindly now try this 144, 180 and 250. I am writing the answers on the board also. Ma'am, I wrote the answer of 144, 180, 252. Ma'am, may I speak? Ma'am, Hanji. you told that we need to do question number 6. So should we do the question number 6 or first this? 144. Like first you have to, beta, I have said first you have to do these 3. Ma'am, I have done the 3. What to do next? Now this question 144, 180 and 252. Okay, ma'am. Actually, I got the answer. It's 36. Okay, then wait, we are moving to the next topic. You can check the answers from the board. Now we have to move to the next topic. मैम मेरे सारे ठीक हैं. Okay, beta, don't unmute yourself. You can answer in the chat box. जो आप कहना चाहते हैं chat box में बोलिए. Now I am erasing these questions and we are moving to LCM. Chat box में लिखिए LCM क्या होता है? LCM. What is LCM? Write in the chat box. I will check.
then I will explain. Largest common multiple, least common factor, lowest common factor, lowest common multiple. ओके, सबके डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स हैं, मैं आपको करेक्ट कर देती हूँ. एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मैम 1 मिनट मैं बोलूं एक बार. नहीं बेटा अभी नहीं, फर्स्ट लेट मी फिनिश. ऐसे नहीं. ओके मैम. लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मीन्स सबसे छोटा, द स्मॉलर वन. कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बहुत सिंपल बताया था. अगर हमें मल्टीपल लिखने होते हैं तो इट मीन्स टेबल. अब मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगी. जैसे we are given 24 and 36 and we have to find out its LCM. LCM means ऐसा कौन सा सबसे छोटा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है. 24 और 36 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. यानी कि 24 और 36 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं उसमें सबसे पहला जो कॉमन आता है. अब इसको देखते हैं, हम इसको फैक्टर से समझते हैं सबसे पहले. अब मैं लिखती हूँ 24 के फैक्टर्स. 24 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24. ये हो गए सारे 24 के फैक्टर्स. अब मैं लिखती हूँ, सॉरी आई हैव रिटन फैक्टर्स, सॉरी, आई एम सो सॉरी. हम लिखते हैं 24 के मल्टीपल्स यानी कि टेबल. 24, 48, 72, 96. अभी हम 36 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं. 36, 72. अब आपने क्या देखा, मैंने 24 के मल्टीपल्स लिखे 4, फिर मैंने 36 के 2 ही मल्टीपल्स लिखे, तो मुझे पता लगा कि ये कॉमन है. ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, हमें इस मेथड से करना नहीं है, बट ऐसे नहीं निकालना है एलसीएम. जस्ट आई एम ट्राइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट. मैंने 24 का टेबल लिखा, मैंने 36 का टेबल लिखा, और जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल था दोनों का, वो हो गया हमारा LCM. इट इज 72. यानी कि 24 और 36 के टेबल में जो सबसे पहला कॉमन नंबर आता है वो है 72 और वो होता है LCM. अगर आपको ये बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस. तो मैं आगे मूव करती हूँ. मैं आपको मेथड बताऊंगी, फिर इसको हमें किस तरीके से करना है. आयशा, नेम, नो. ओके, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा से समझेंगे इसको. Suppose they have given us numbers 15 and 40. They said find out its LCM. यानी कि एक ऐसा नंबर बताओ सबसे छोटा जो 15 के टेबल में भी आता हो और 40 के टेबल में भी आता हो. कॉमन मल्टीपल कई सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा बताना है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल. और वो फर्स्ट जो होगा वो सबसे छोटा भी होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन. हम अब अलग मेथड से समझते हैं. 15 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है. मैंने पहले भी बताया था, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट द पॉइंट इज यू हैव टू यूज ओनली प्राइम नंबर. तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं. मैं पहले 5 यूज कर रही हूँ. 5 into 3 gives us 15 and 3 into 1 gives us 3. तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 15 का. अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 40 का.
We have 0 at the end, so it will go in the table of 2. 2 into 2 gives us 4. 2 into 0 gives us 0. So we got 20. Now again, it comes in the table of 2. 2 into 1, 2. 2 into 0, 0. Now again, it will come in the table of 2. 2 into 5 gives us 10. Now 5 is a prime number. 5 into 1 gives us 5. So we are done with the prime factorization. Now see the process, how we find out the LCM. First, I will write the prime factors of 15. It is 5 multiplied by 3. Then I will write the prime factors of 40. It is 2 into 2 into 2. 2 to the 4 to the 8, 5 the 40. Now what we have to do? अब मैं दोबारा से यहाँ बताती हूँ, अगर हमें निकालना होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम जल्दी से क्या देखते हैं, कौन सा कॉमन है, हम उसको कॉमन निकाल के हम लिख देते हैं कि HCF जो है वो 5 है. मतलब एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसके टेबल में 15 और 40 आते हैं. अब यहाँ पे हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आता हो. तो हम क्या करते हैं, हम पहले जो कॉमन होता है उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं. आप ऐसे सर्कल करो या नहीं करो, इट इज नॉट मैंडेटरी, बट हम इसलिए करते हैं कि वी हैव टू टेक देम वंस नॉट ट्वाइस. सी 5, then multiply by 3, then multiply by 2, multiply by 2 and multiply by 2. 5 into 3, बेटा म्यूट करो जिसने भी अनम्यूट किया. 5 into 3 15, 15 into 2 30, 30 into 2 60, 60 into 2 120. So 120 is the number which comes in the table of 15 and 40 both. Now, is it clear to you or not? Kindly comment me in the chat box. मैं अभी एक और एग्जांपल भी दूंगी, जिनको क्लियर नहीं है आप देखना और अच्छे से समझ में आएगा. सोहन मैं एक्सप्लेन करूंगी. हाँ जी. Ma'am, so the first method you also said it was we can also use that method, and this method you told. But generally that method is not applied because हमें अभी तो ये बहुत छोटे numbers हैं. We can write the table of 15 and 40, but in the bigger numbers we can't write the table easily. Multiples means table, so we use prime factorization method and division method to do LCM. वो मैंने आपको just example समझाने के लिए किया था कि LCM होता क्या है. Now we will see one more example जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो. ये आप जो मैं बेसिक्स जो बता रही हूँ ना कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जब अभी हम इसके एमसीक्यूज और वो करेंगे वहां पे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. तो क्लास में ध्यान से सुनना, हमें सिर्फ सम नहीं करने, हमें समझना है कि हम कर क्या रहे हैं, वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसके बाद सम्स बहुत इजी हो जाते हैं. Now I am taking one more example. I am taking now 3 numbers. 36, 60 and 72. Now we will individually find out the prime factor of all these 3 numbers. First I am taking 36. 36 is even number. It comes in the table of 2 and 3 both. So I am taking 2. 2 into 18 gives us 36. 2 into 9 gives us 18. 3 into 3 gives us 9 and 3 into 1 gives us 3. So we are done with the prime factors of 36. Now I am moving to 60.
It is an even number. 2 into 3 gives us 6. 2 into 0 gives us 0. Now again, 15 into 2 gives us 30. I've written 15. Now 3 into 5 gives us 15. And 5 into 1 gives us 5. So we are done with this also. Now I am moving to 72. 2 into 36 gives us 72. 2 into 18 gives us 36. 2 into 9 gives us 18. 3 into 3 gives us 9. 3 into 1 gives us 3. Now we are done with the prime factorization of all three. Now we will find out the LCM. First we have to write the prime factors. Prime factors of 36. It is 2 into 2 into 3 into 3. Now 60. It is 2 into 3 into, 2 into 2 into 3 into 5. Now 72. It is 3 times 2 and 2 times 3. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. अब हमने सबके प्राइम फैक्टर्स लिख लिए. अब प्रोसेस देखिए कैसे करें. नाउ वी विल फाइंड आउट द एलसीएम. अब यहाँ पे 3 नंबर्स हैं. देखिए एचसीएफ का रूल क्या था जब हमने कल लास्ट क्लास में एचसीएफ किया था. अगर वहां पे हम 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं तो कॉमन नंबर जो है हमें तीनों में से लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो जो 3 में कॉमन है हम वो भी लेंगे और जो 2 में कॉमन है हम वो भी लेंगे. देखिए कैसे. ये 2 तीनों में कॉमन है तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया. मल्टीप्लाई. नाउ 3 भी कॉमन है. 2 2 2. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दीज 3 2s. तो ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया. मल्टीप्लाई. अब मैं ले रही हूँ 3 and 3. आई एम टेकिंग इट एज कॉमन. एक 3 लेंगे. नाउ मल्टीप्लाई. अब आप देखो ध्यान से 36 का जो एक फैक्टर है वो 3 है और 72 का भी एक फैक्टर 3 है बट वो 60 में नहीं है तो भी हम इन दोनों को कॉमन लेंगे. वी विल टेक 1 3. ये 3 हो गया. नाउ यू कैन सी हियर 5 is left. We will take 5 and here 1 2 is also left. We will take 2. So now we will multiply all these numbers. 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 3 36, 36 into 2 72, 72 into 5 360. Means 360 वो नंबर है जो 36, 60 और 72 के टेबल में आता है. ये सबसे पहला नंबर है. ये सबसे छोटा नंबर है जो 36 के टेबल में भी आता है, 60 के टेबल में भी आता है और 72 के टेबल में भी आता है. नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर. साइशा सेड क्लियर. निष्का, श्रेयांशी, त्रिशा, शरगुन. चलिए अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन पहले हम करेंगे इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस जिससे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो. बेटा जब एक ही टेबल में होगा तो आप देखिए यहाँ पे 5 यहीं पे था तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया ना. यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें सारे फैक्टर्स को करना है क्योंकि हम मल्टीपल निकाल रहे हैं. लेकिन जो कॉमन है उसको हमें कॉमन निकाल के वी हैव टू टेक इट वंस. ये तीनों में कॉमन है तो हमने एक बार लिया. फिर उसके बाद दूसरा 2 तीनों में कॉमन है हमने एक बार लिया. फिर 3 तीनों में कॉमन है हमने एक बार लिया. फिर यहाँ पे एक 3 रह गया तो मैंने वो भी ले लिया. यहाँ पे एक 5 रह गया मैंने वो भी ले लिया. यहाँ पे एक 2 रह गया मैंने वो भी ले लिया. फैक्टर्स हमें सारे लेने हैं. म्यूट करो जी जिसका म्यूट है. म्यूट योरसेल्फ.
Ma'am, I mean that what if when we multiply all the numbers and we get answer, and that answer is in only one of the number we are like did the prime numbers, so it will not be there. I'm not getting your point, Aisha. Aisha बोल रहे हो ना? Ma'am, I mean that when we multiply prime factors like 30, 16, 72, when we multiply all of them, we get a number, and that number is only in one table, like 36 it is now. It's not in 64 or 78 or something like that. So what will happen? It will be, the answer will be still correct. आप कह रहे हो कि अगर हमारा जो ये 360 वी गॉट द एलसीएम, Yeah. हाँ, ये नंबर जो है, जो हमें नंबर्स दिए हैं 36, 70 और 72, ये तीनों के टेबल में आता है। ओके ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे, मगर फिर भी हमें आंसर मिलेगा और तीनों के टेबल में आएगा। हाँ हाँ, वो तीनों के टेबल में आएगा। ओके ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बोर्ड, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, यू हैव टू डू दैट। Ma'am, shall I speak, please? यस, So, ma'am, means it's compulsory to multiply the whatever answer we get. Means we बेटा circle वी it. हैव टू राइट, वी हैव टू मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें इन तीनों के टेबल का कॉमन नंबर लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल? Ma'am, table. स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेबल बेटा? टेबल का मतलब क्या होता है? वी हैव टू Table means- मल्टीप्लाई ना, we have to Yeah. multiply the particular number by 1, then 2, then 3, then 4, then we get the table ना. So here Yes. we have to find out the number जो इन तीनों के टेबल में आता है, तो वो बिना मल्टीप्लाई किए नहीं निकल सकता। और मैम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन गलत हुआ तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग ही रहेगा। यस यस राइट, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन गलत होगा तो बेटा आंसर गलत ही है। ओके मैम, चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, और you have to tell the answer in the comment box, and I will write the answers here after 5 minutes. You have 5 minutes, do these fast. Ma'am, we will do LCM now. Yes बच्चे, we have learned LCM ना अभी, तो हम LCM ही करेंगे। मैम मुझे ये तरीका समझ नहीं आ रहा। Who said this? मैम सोहन। कौन सा तरीका आता है सोहन, आपको बताएंगे आप? मैम मैम हम लोग पहले HCF क्या बोलते हैं, HCF नहीं, नॉर्मल टेबल्स लिखते हैं, फिर उसमें से फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा सबसे छोटा है। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप उससे निकालो, बट मुझे एक बात बताओ सोहन, जब हम बड़े नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम, जैसे आप फोर्थ क्वेश्चन देखो या फर्स्ट ही क्वेश्चन देखो, यू नो द टेबल ऑफ 28 एंड 84 बोथ, वो मेथड गलत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि इट इज रॉन्ग, मैंने सबसे पहले आपको वही बताया था, बट इट इज लिटिल बिट टिपिकल। वी ऑलवेज नीड टू फाइंड आउट द इजीएस्ट वेज, हमें आसान तरीकों से करना चाहिए। उसमें क्या फायदा होता है कि हमारी गलती होने का चांस कम होता है। अगर आप वैसे भी कर देंगे, इट इज कंप्लीटली ओके, इट विल नॉट बी रॉन्ग अगर आपका आंसर ठीक है, बट आपको टेबल्स बनाने में मुश्किल आएगी। यस मैम। ठीक है, करिए। ओके मैम, थैंक यू। आफ्टर 5 minutes I will write all the 4 answers on board. आप कमेंट करते रहिए, मैं आंसर्स लिख दूंगी बोर्ड।
कृतार्थ 85 इज नॉट द आंसर बेटा, एक बार चेक कर लो। मैम हाँ जी, मैम फर्स्ट का आंसर 168 है। अभी मैं बताऊंगी, अभी आप बस करो। आई विल टेल माई सर। Two minutes left. After 2 minutes, I will write the answer on the board. Right, Divisha? Jigar, you have done? Right, Sargi? नाया, कर्मनवीर, जल्दी से करिए। आर्यन, दक्ष, देवांशी, टू फास्ट। निष्का, संजना, राइट जीविका? 1 minute left. Vishwak, it is wrong, beta. Ma'am, shall I speak? First complete the questions, then you can speak. No, ma'am, I want the fourth one. Actually, I did not understand the 90. क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें आपको? इसमें Question. फोर्थ वाले का मेरे को 90 समझ नहीं आ रहा था. 90 क्यों नहीं समझ में आ रहा? You have learned the divisibility rule in earlier classes ना? Yes, ma'am, but I tried. I'm getting the wrong answer. I'm checking in chat box also. That's 90 को, हाँ जी, 90 का सम ऑफ डिजिट्स क्या है? What is the digit sum of this number? 9 plus 0 gives you what? 9. 9. 9. 9 3 के टेबल में आता है, तो डिवाइड इट बाय 3. It also comes in the table of 3. It also comes in the table of 3. 90 को 3 से डिवाइड करिए आप. लास्ट में 0 है तो ये इवन नंबर है, आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो. इट इज वेरी इजी बेटा. Now I'm writing the answers. Ma'am, Better don't unmute yourself. I will ask, then you have to tell. अभी मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे आप किस किस के आंसर्स कितने ठीक है. यू हैव टू राइट जस्ट 1 2 3 and 4.
किसके कितने आंसर्स ठीक है, यू हैव टू टेल मी इन द चैट बॉक्स. आई हैव ओपन द चैट बॉक्स. निष्का, जो आपका गलत है उसको ट्राई करो दोबारा. ट्राई इट वंस मोर. जिगर, आपका एक ठीक है. सोहन, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या एलसीएम समझ में नहीं आया? मैम मैम जब आप एलसीएम सिखा रही थी ना तो नेट चला गया था तो लीव हो गया था तो. कोई बात नहीं बेटा, आपको वो मिल जाएगी वीडियो, एक बार उसमें देखना. ओके मैम. मैम मैं बात कर सकती हूँ? हाँ जी, बोलिए बेटा. मैम मेरे चैट बॉक्स हैंग हो गए हैं इसीलिए मैं टाइप नहीं कर पा रही. अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, आप आंसर्स टैली कर लीजिए. ओके मैम. Those who have done और उनके आंसर्स ठीक है, काइंडली मूव टू द पीडीएफ क्वेश्चंस. इट विल सेव योर टाइम, आपको होमवर्क करने का टाइम बच जाएगा. Kindly check all 4 answers from the board and you have to just write 1, 2, 3, 4. इसका मतलब एक ठीक है, दो ठीक है, तीन ठीक है या चार ठीक है. You have to just write this. Tomorrow I will finish this chapter and I will give you 1 day to revise it, and on Saturday I will take test. सर की थर्ड ट्राई करो, क्या गलती हुई है उसमें, चेक इट वंस. मैम ऑन सैटरडे ना? या ऑन सैटरडे आई विल टेक टेस्ट. Ma'am, Saisha, do the fourth one again. Yes, beta. ma'am, how is first answer 84? किसने पूछा, एक बार मुझे बोलेंगे? Ma'am, Aisha. आयशा, फर्स्ट रॉन्ग है आपका, बाकी सब ठीक है. Ma'am, first, third और fourth. 3 रॉन्ग है. जी मैम. ओके, सेकंड इज राइट. आयशा, आयशा, Yes मैम. चलो म्यूट करो. एक बार मैं बोर्ड पे बताती हूँ, जिनको नहीं भी समझ में आया एक बार दोबारा से. नो प्रॉब्लम, देन आई विल ओवर द क्लास. मैम shall I speak? हाँ जी, बोलो. मैम कितने सम्स कर रहे हैं पीडीएफ में? पीडीएफ में अभी आई विल टेल द होमवर्क, पहले एक बार बोर्ड पे फिर से देख. 28 is even number, so I will divide 28 by 2. 2 into 1, 2, 2 into 4, 8. I got 14. Again, 14 comes in the table of 2. 2 into 7 gives us 14. 7 into 1 gives us 7. I have done with this. Now 84. Again, it is an even number, so I will divide 84 by 2. 2 into 4 gives us 8. 2 into 2 gives us 4. Again, 42 is an even number. 2 into 2 gives us 4. 2 into 1 gives us 2. Now we got 21. 21 comes in the table of 3 also and 7 also. 3 into 7 gives us 21. 7 into 1 gives us 7. So we are done with prime factors of 28 and 84. So prime factors of 28, 2 into 2 into 7. Prime factors of 84, it is 2 into 2 into 3 into 7. Now first we have to check which one are common. So we will take them once. 2 is common, then again 2 is common, and again 7 is common. So I will take 1 common 2 from this, then I will take 1 common 2 from this, then this 3 single, I will multiply it as it is, and I will take 1 common 7 from this.
2 into 2, 4. 4 into 3 gives us 12. 12 into 7 gives us 84. So our answer is 84. I hope it is clear to you, Aisha. Yes, ma'am. Okay, now listen carefully. What is the homework? Tomorrow morning, I will send all the answers. आप सबने होमवर्क किया था? चैट बॉक्स में लिखिए जो मैंने कल होमवर्क दिया था. I had not taken the class yesterday. Yes, ma'am. Beta, kindly give answer in the chat box, please. जल्दी से yes no लिखिए जिन्होंने ऑनेस्टली बताना, अगर किया था तो भी, नहीं किया था तो भी. Trisha yes, Jivika yes, Divisha yes. Sargi, all homework done. Great. Tomorrow morning before 10 a.m. I will send you the PDF of answers. आप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. LCM बाय डिवीजन मेथड आई विल टेल टुमारो. और कल मैं आपको MCQs कराऊंगी. वैसे मैंने होमवर्क में बोला था कि यू हैव टू ट्राई. कल हम डिस्कस करेंगे MCQs ट्रू फॉल्स, बिकॉज दीज MCQs ट्रू फॉल्स आई हैव मेड फ्रॉम द कोर कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये जितना आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा. ठीक है, एंड प्रैक्टिस फॉर टेस्ट ऑन सैटरडे. और ऑन फ्राइडे आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर फ्रैक्शंस. कोशिश करिए, रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं आपको, लेकिन फिर भी ट्राई करिए कि क्लास में प्रेजेंट जरूर रहिए. Ma'am, what chapter are we doing on Friday? बेटा फैक्टर स्टार्ट करेंगे हम. हाँ जी, क्लास में बेटा प्रेजेंट जरूर रहिए. उसके बाद जब आप वीडियोस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, Ma'am, fractions या factors? फ्रैक्शंस बेटा. ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल की क्लास में. बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. होमवर्क जरूर कर लेना और सुबह टैली करके आप सबने मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है कि किसके कितने क्वेश्चंस रॉन्ग और राइट. ठीक है, Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय. Ma'am.